Hello students, this is class 12th chemistry part 1st from NCERT unit 1st, the solid state. The vast majority of the solid substances like high temperature, superconductors, biocompatible plastics, silicon chips, etc. are destined to play an ever expanding role in future development of science. Okay, so this is the what are the objective of this lesson. Okay, these are the objectives of this lesson. After studying this unit, you will be able to describe general characteristics of the solid state, distinguish between amorphous and crystalline solids, classify crystalline solids on the basis of the nature of the binding forces, define crystals, lattice and unit cell, explain close packaging of the particles, describe different types of the voids and close pegged structures, calculate the packaging efficiency of different types of cubic unit cells, correlate the density of a substance with its unit cell properties, describe the imperfection in solids and their effect on the properties, correlate the electrical and the magnetic property of the solids and their structure. So from our actually that is the what are the solids? Solids have the definite mass, definite volume and definite shape. Because in solids intermolecular distance are very short, that's why the intermolecular forces are very strong, that's why the atoms cannot be depart from each other. Their constituent particles, atoms, molecules or the ions have the fixed position and can only oscillate about their mean positions. Means they move but very slightly move and come to the original or initial position. They are incompressible and rigid होते हैं solids. So the some solids are the pseudo solids. The glass is a pseudo solid. Okay, object from the inside, because glass is a liquid, become milky and appearances because of some crystallization. Like liquids, amorphous solids have a tendency to flow through very slowly. Therefore, sometimes these are called the pseudo solids or supercooled liquids. Glass is an example of the supercooled liquid. Okay. Anisotropy in crystals is due to the different arrangement of the particles along different direction. Different director anisotropy काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी है, और वो क्रिस्टल्स में एक अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए वो अनिस्ट्रोपी दिखाते हैं. देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और देयर इज़ द टू काइंड्स ऑफ द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड. दिस टेबल शोज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. मीन्स ये जो है ये टेबल बताती है कि इनमें डिफरेंस क्या है. देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ द शेप की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है डेफिनेट कैरेक्टर्स ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इरेगुलर शेप में होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्ट एट द शार्प एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर एंड ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ द टेम्परेचर. क्लीवेज प्रॉपर्टी जो होती है, वेयर व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल they split into the two pieces and the newly generated surface are plain and smooth. When cut with a sharp edge tool, they cut into two pieces with irregular surfaces. Heat of the fusion. They have a definite and characteristic heat of fusion. They do not have the definite heat of fusion. Anisotropy. Anisotropic in nature, isotropic in nature. Nature. ट्रू सॉलिड्स होते हैं, सीडो सॉलिड्स हो सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स हो सकते हैं. ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और उनके शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और दो सॉलिड जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और एमॉर्फस सॉलिड जो है होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, और ये बहुत सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड जो है ब्रिटल होते हैं. ठीक है.
अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, the non-polar molecular solids, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid. They comprises of the either atoms, for the example argon and helium, or the molecular formed by non-polar covalent bond, for example hydrogen, chlorine and iodine. Polar molecular, the molecules of the substance like the इसमें क्या आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, sulfur dioxide. Hydrogen bonded molecule, the molecular of the such solids covalent bond contain polar covalent bond, hydrogen, fluorine, oxygen and nitrogen atoms generally. Ionic solids. Ionic solids are constituent particles of the ionic solids, such as the solids are formed by the just like the NaCl. Metallic solids. Metals are orderly collection of the positive ions surrounded by and held together by a sea or free electrons. A covalent or network solid, a wide variety of the crystalline solid of non-metals result from the formation of the covalent bonds between adjacent atom and throughout the crystal. They are also called the giant molecules. देखिए कोवेलेंट और द नेटवर्क सॉलिड. कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, जो कोवेलेंट होते हैं, जो कार्बन की जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन जो है, नेटवर्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द जो डायमंड है वो टेट्राहेड्रल है. और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है और लेयर टू लेयर ईच कार्बन एटम अटैच्ड विद द अनदर कार्बन एटम. दैट्स वाई द ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉलिड्स. अब मोलिकुलर सॉलिड्स, नॉन पोलर जो होगा, मोलिकुलर डिस्पर्शन और द लंदन फोर्सेस एंड द डाइपोल टू डाइपोल इंटरेक्शन होगा उसमें. आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, HCl एंड SO2. सॉफ्ट होंगे इंसुलेटर और इंसुलेटर होगा. सिर्फ H2O जो आइस है वो हार्ड होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो एंड हाई होता है. आयोनिक सॉलिड्स, आयंस पे होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके आयंस होंगे. कोलम्बिक और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में होगा और ये होंगे NaCl, MgO, ZnS एंड CF2. एंड हार्ड बट ब्रिटल होंगे. इंसुलेटर होंगे इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट. ये इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में, पर जैसे ही ये किसी जब लिक्विड स्टेट में होंगे, सॉल्यूशन में होंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देंगे इनमें से और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. मेटलिक सॉलिड्स जो होते हैं पॉजिटिव आयन सीन है. सी ऑफ द डेलोकेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें. मेटलिक बॉन्डिंग होती है इनकी. फेरस, क्यूप्रस और आपका मैग्नीशियम एंड सिल्वर. हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल. हार्ड होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं. कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट. फेयरली हाई होता है इसका. कोवेलेंट और द नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं एटम्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड. क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं SiC, डायमंड NiC. हार्ड होता है, इंसुलेटर होता है, वेरी हाई होती है. ठीक है. द क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल. देखिए लैटिस किसको कहते हैं, एक आप बिल्कुल सीधे से बॉक्स है, ये क्यूबाइड पोजीशन है, पोर्शन ऑफ ए 3 डायमेंशनल क्यूब लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल. हर एक यूनिट एक दूसरे से मिलके बनी. आप देखिए यहाँ पर जितने भी ये छोटे छोटे एटम्स नज़र आ रहे हैं वो एटम्स एक दूसरे से अटैच्ड है और इस अटैच्ड के साथ जो पिंक कलर का जो आपको बता रहा रेड आउटर लाइन से वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है. Okay, there are the 14 possible and dimensional lattices. Okay, there are the called the Bravais lattices. After the French mathematician who first described that, the following the characteristics of the crystal lattice. Each point in a lattice is called the lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be an atom, a molecule, group or atoms or an ion. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. देखिए इलस्ट्रेशन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल. यूनिट सेल किसका है, जिससे देखिए आप ये A, B एंड C, ये एजे से ABC और ये सरफेस है और इनके बीच में जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल बना हुआ है ये सॉलिड का है.
Primitive and centered unit cell. Unit cell can be broadly divided into two categories, primitive and centered unit cell. Primitive unit cell, when constituent particles are present only on the corner position. अगर उनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्नर पोजीशन पे ही है तो उसे प्रिमिटिव सेल यूनिट सेल कहेंगे. सेंटर यूनिट, व्हेन द यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द पोजीशन other than corners in addition to those at corner, it is called the center unit cell. Center unit cells are of the three types: body centered, face centered, okay, and that is end centered unit cell. Okay, now there is the diagrams of the क्यूब है, उसके बाद टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोगोनल है, फिर मोनोक्लिनिक है, फिर हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है और ट्राइलिनिक है. ये सारे वो हैं सॉलिड्स के जो शेप हैं वो हैं. और आपका जो है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड देयर पॉसिबल वेरिएशन इन द सेंटर यूनिट सेल. क्यूबिक सेल में A इक्वल टू B इक्वल टू C, उनकी एजेस सेम होगी तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा. ये किस में होता है? NaCl में, सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड में होता है और कॉपर में होता है. टेट्रागोनल प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड होता है, A इक्वल टू B पर B इज़ नॉट इक्वल टू C. मतलब एक उसका जो होगा वो क्यूबाइट शेप में होगा, क्यूब में नहीं होगा. अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. एक्चुअली में क्या क्यूबाइट है तो उसका 90 डिग्री का एंगल होगा. हर एक के बीच में वाइट टिन SnO2 TiO2 एंड CaSO4 कैल्शियम सल्फेट. आर्थोरोम्बिक जो होगा प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड होगा, फेस सेंटर भी हो सकता है, एंड सेंटर भी हो सकता है. इसमें A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा बीटा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री. रोम्बिक सल्फर के सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट. ओके, हेक्सागोनल में प्रिमिटिव में A इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C. टेट्रागोनल और हेक्सागोनल का सेम है, इसमें अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट गामा जो है 150 डिग्री पे होगा क्योंकि ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड. ओके, सल्फाइड. द रोम्बोडेरल और द ट्राइगोनल जो होगा वो A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा. कैल्साइड CaCO3 और हाइड्रोजन सल्फाइड सिनेबार. ठीक है, अब ये सारे जो डायग्राम है आप देख लीजिएगा. इसमें बॉडी सेंटर्ड प्रिमिटिव ये हो गया, कॉर्नर पे हो गए. बॉडी सेंटर में सारे जो है मिल्की बॉडी सेंटर में है. फेस सेंटर फेस के ऊपर है. ठीक है, प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया. इस तरीके से सारे डायग्राम दिए हुए हैं, आप इसको समझ लीजिए. आप इसको लर्न करना पड़ेगा, बार बार इसको ड्रा करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा. ठीक है, अब हेक्सागोनल रेडिस जो है वो दिया हुआ है और रोम्बोहेड्रल दिया है, ट्राइक्लिनिक दिया है और ये इस तरीके से. अब देखिए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है बिल्कुल सेंटर में आप देख लीजिए, है ना. और इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ईच कॉर्नर एटम्स इज शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल. 8 यूनिट के साथ वो शेयर्ड है. ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है. देख लीजिए इसका डायग्राम जो है बॉडी सेंटर्ड है. ठीक है, और फेस सेंटर्ड में आप इस तरीके से है. फेस सेंटर में ये फेस सेंटर हो गया. ठीक है, और आपका जो है क्लोन पार्टिकल स्ट्रक्चर हो गया. ये देखिए आपका ये यहाँ पर हेक्सागोनल बन रहा है ग्रीन कलर में. ये सारी चीज़ें हो गई. टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और ये हो गया आपका स्टेक ऑफ द 2 लेयर्स ऑफ द क्लोज पैक्ड स्फीयर एंड वाइड्स जनरेटेड इन द T इज टेट्राहेड्रल एंड O इक्वल टू ऑक्टल. जहाँ जहाँ T लिखा है वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टल है. ये इसे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. वाइड्स आर द टॉप व्यू हो गया इसका टेट्राहेड्रल का. और ये और एक्सप्लोडेड साइड हो गई, एक्सप्लोडेड साइड भी हो गया. ज्योमेट्रिकल शेप एंड वाइट. The sodium chloride and quartz are the typical example of the crystalline solids. Solids can be classified into crystalline and amorphous on the basis of the nature of the order present in the arrangement of their constituent particles. A crystalline solid usually consists of a large number of the small crystals, each of them having a definite characteristics geometrical shape. In a crystal, the arrangement of the constituent particles, atoms, molecular ions is the ordered. It has long range order, which means that there is a regular pattern and arrangement of the particles while repeats and itself and periodically over the entire crystal. Sodium chloride and quartz are the typical example of the crystalline solid. Amorphous solid, the Greek amorpho means no form, consists of the particle in irregular shape
The arrangement of the constant particle atoms, molecule or ions in such a solid has only short range order. In such an arrangement, a regular and periodically repeating pattern is observed over solid. देखिए, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये उसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इधर जो क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फोस हो गया। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन है और क्वार्ट्ज ग्लास जो है एमोर्फोस है। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक आर द टिपिकल एग्जांपल एमोर्फोस सॉलिड। So that is the lesson is completed. This is